اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا جو سبجیکٹ کا نام ہے فزکس، کلاس 9 بک پنجاب ٹیکسٹ بک۔ آج کا جو ٹاپک ہے انٹرنیشنل سسٹم آف یونٹس ہے، پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی جو پیج نمبر 5 ہے۔ آج ہم اس چیز کو ڈسکس کریں گے۔ آج کا ٹاپک بہت زیادہ دلچسپ قسم کا ٹاپک ہے، بڑا بہترین قسم کا، اور یہ امپورٹنٹ قسم کا ٹاپک ہے۔ ایگزامس کے حوالے سے یہ بہت زیادہ اہم ٹاپک ہے، تو آپ اس کو آج زیادہ توجہ کے ساتھ آپ نے اس کو سننا ہے۔ آج کے لیکچر کے اندر جو چیزیں ہم دیکھیں گے وہ ہے یونٹ کیا ہوتا ہے، ایف پی ایس میئرمنٹ سسٹم، CGS measurement system, why we need system of international of measurement اور انٹرنیشنل سسٹم آف یونٹس۔ یہ 5 ٹاپک ہیں جس کو ہم آج انشاءاللہ اس لیکچر کے اندر کور کریں گے۔ دیکھیں، سب سے پہلے آپ کے پاس یہ جو ڈیفینیشن ہے یونٹ کیا ہے۔ کوئی بھی پیمائش اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیشہ ایک معیار مقرر کیا جاتا ہے، پھر اس پیمائش کو اس سٹینڈرڈ، اس معیار کے مطابق بیان کیا جاتا ہے۔ جیسے آپ کے پاس ایک کوانٹٹی ہے، اس کا نام ہے لینتھ، لمبائی کا ایک معیار ہے، اس کو ہم لمبائی کو ہمیشہ میٹر کے اندر میئر کرتے ہیں، پیمائش کرتے ہیں۔ آپ دنیا کے کسی بھی مقام پہ چلے جائیں اور ہمیشہ لمبائی کی جو پیمائش کرنے کے لیے جو سٹینڈرڈ استعمال کیا جائے گا، جو معیار استعمال کیا جائے گا، وہ ہمیشہ یونٹ کہلائے گا۔ اگر آپ سے شارٹ کویشچن پوچھا جائے کہ یہ بتائیں یونٹ کیا ہوتا ہے، تو آپ یہ بتائیں گے ونس اسٹینڈرڈ از سیٹ فار اے کوانٹٹی۔ جب ایک دفعہ کسی بھی مقدار کے لیے ایک معیار مقرر کیا جاتا ہے، then it can be expressed in term of that standard quantity۔ پھر اس مقدار کو اس معیاری مقدار کے لحاظ سے بیان کیا جاتا ہے۔ this standard، یہ جو معیار ہے، is called unit، اسے ہم یونٹ کا نام دیتے ہیں۔ اگر آپ کو اردو میں پوچھے کہ جی یونٹ کیا ہوتا ہے، تو آپ نے یہ بتانا ہے کسی بھی مقدار کے لیے ہمیشہ ایک معیار مقرر کیا جاتا ہے، اور ہمیشہ اس مقدار کو ہم اس معیار کے مطابق، اس سٹینڈرڈ کے مطابق بیان کرتے ہیں، اور اس سٹینڈرڈ کو، اس معیار کو یونٹ کہا جاتا ہے۔ جیسے مثال ایگزامپل دے دیں، لینتھ، لمبائی کا جو یونٹ ہے وہ میٹر ہے، ماس کا جو یونٹ ہے وہ کلو گرام ہے، اور ٹائم کا جو یونٹ ہے وہ سیکنڈ ہے۔ نمبر 2 کے اوپر اگر ہم دیکھیں، ہمارے پاس پیمائش کا ایک نظام ہے، اس کو کہتے ہیں FPS میئرمنٹ سسٹم۔ FPS اگر ہم دیکھیں تو ایف جو ہے یہ استعمال کیا جاتا تھا پرانے زمانے کے۔ FPS یہ ایک ایسا پیمائش کا نظام ہے جس کو پرانے زمانے میں استعمال کیا جاتا تھا۔ FPS جو پیمائش کا نظام ہے، اس کے اندر ایف سے مطلب فٹ، پی سے مطلب پاؤنڈ، اور ایس سے مطلب ہے سیکنڈ۔ فٹ کو پرانے زمانے میں لمبائی کی پیمائش کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، پاؤنڈ کو ماس کی پیمائش کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اور ٹائم کی پیمائش کے لیے سیکنڈ کا استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ جو نظام پیمائش ہے، یہ پیمائش کرنے کا جو نظام ہے FPS سسٹم، یہ برطانوی برٹش نظامی پیمائش کہلاتا تھا۔ ایک اور آپ کے پاس جو سسٹم ہے، اس کو کہتے تھے CGS میئرمنٹ سسٹم۔ یہاں پہ سی سے مطلب سینٹی میٹر، جی سے مطلب گرام، ایس سے مطلب ہے سیکنڈ۔ یہ جو CGS سسٹم ہے، اس کے اندر لمبائی کے لیے سینٹی میٹر استعمال کرتے تھے، اور ماس کے لیے گرام استعمال کرتے تھے، اور ٹائم کے لیے سیکنڈ کا استعمال کیا جاتا تھا۔ اور اس نظام کو ہم اس سسٹم کے اندر، اس پیمائش کے نظام کے اندر سینٹی میٹر لمبائی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، گرام
मास के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जबकि सेकंड टाइम के लिए इस्तेमाल किया जाता था। हम इस CGS सिस्टम को अमेरिकन निज़ामी पैमाइश या अमेरिकन मेजरमेंट सिस्टम का नाम देते थे। देखें, 1960 से पहले इस दुनिया के अंदर पैमाइश के बहुत सारे निज़ाम राइज थे। हर इलाके के अंदर, हर मुल्क के अंदर पैमाइश के मुख्तलिफ़ किस्म के निज़ाम राइज थे। उनमें से जो काबिल ज़िक्र थे वो FPS मेजरमेंट सिस्टम और CGS मेजरमेंट सिस्टम मौजूद थे। साइंस की तरक्की के साथ साथ सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है साइंस की तरक्की के अंदर वो ये हुआ कि हमारी जो ज़िंदगी है वो तेज़ हो चुकी है, फास्टर हो चुकी है। इस साइंस की तरक्की के अंदर हमने ये देखा कि ज़राए आमदोरफ़्त ने बहुत ज़्यादा तरक्की की। अब हम आज के दौर में एक जगह से दूसरी जगह बड़ी तेज़ रफ़्तारी के साथ पहुंच सकते हैं। इस जिसकी वजह से हमारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यानी ज़राए आमदोरफ़्त बहुत ज़्यादा तेज़ हुए हैं और उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमें तिजारत के अंदर हुआ है। अगर एक चीज़ को एक इलाके के अंदर पैदा किया जाता तो उसे बेचने के लिए जब दूसरे इलाके के अंदर जाया जाता था तो पहले इलाके के अंदर फ़र्ज़ करें FPS मेजरमेंट सिस्टम राइज था तो दूसरे के अंदर CGS मेजरमेंट सिस्टम राइज था। तो वहाँ पर तिजारत के अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आती थी, बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। तो 1960 के से पहले दुनिया के मुख्तलिफ मकामात के अंदर FPS सिस्टम और CGS सिस्टम राइज थे। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, इस मसले को ख़त्म करने के लिए ये सोचा गया 1960 के अंदर कि क्यों ना पैमाइश का एक ऐसा निज़ाम राइज किया जाए कि उसको पूरी दुनिया के अंदर कबूल किया जा सके और उस सिस्टम को 1960 के अंदर पेरिस के मकाम पर पेरिस के नज़दीक एक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई और इकाइयों का पैमाइश का बैनुल-अक़वामी निज़ाम मुतारिफ़ करवाया गया और इस निज़ाम को पैमाइश के इस निज़ाम को SI सिस्टम ऑफ मेजरमेंट कहते हैं। आपसे वो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछेगा जी बताएं सिस्टम इंटरनेशनल SI सिस्टम ऑफ मेजरमेंट की ज़रूरत क्यों पेश आई? तो आप बता सकते हैं 1960 से पहले दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर पैमाइश के मुख्तलिफ निज़ाम राइज थे। उनमें से एक निज़ाम FPS बरतानवी निज़ाम पैमाइश ब्रिटिश मेजरमेंट सिस्टम और दूसरा CGS सिस्टम यानी अमेरिकन निज़ाम पैमाइश अमरीकी निज़ामी पैमाइश राइज था। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए 1960 में पेरिस के नज़दीक एक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई और पैमाइश का एक बैनुल-अक़वामी निज़ाम मुतारिफ़ कराया गया। इस बैनुल-अक़वामी निज़ाम को इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का नाम दिया जाता है। अगर आप लोगों ने इसको करना है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से याद, तो यूनिट की तारीफ याद होनी चाहिए आपको और आपको ये याद होना चाहिए कि हमें सिस्टम इंटरनेशनल की ज़रूरत क्यों पेश आई और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट की जो तारीफ है वो आप लोगों को याद होनी चाहिए। तो आज जो चीज़ हम लोगों ने पढ़ी है, अब हम किताब के साथ इसकी हाईलाइट कर लेते हैं। आप अपने पेंसिल, अपने हाइलाइटर निकाल लें और ये जो शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाए हैं, इसको आप लोगों ने यहाँ पे अपनी बुक के ऊपर हाईलाइट करें। पेज नंबर निकालें 5। इसके अंदर एक टॉपिक लिखा होगा आपके सामने, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, यूनिट का बैनुल-अक़वामी निज़ाम। इसके अंदर बड़ा मशहूर शॉर्ट क्वेश्चन है, उसका नाम है यूनिट। यूनिट क्या है? इसकी डेफिनेशन यहाँ से उठाएं। Once standard is set for a quantity, then it can be expressed in term of dash standard quantity. This standard quantity is called unit. यहाँ तक once का मतलब एक दफ़ा, स्टैंडर्ड एक मयार सेट मुकर्रर कर लिया जाता है फॉर ए क्वांटिटी किसी भी मिकदार के लिए। जब एक दफ़ा किसी भी मिकदार के लिए एक मयार मुकर्रर कर लिया जाता है, देन फिर इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ डैश स्टैंडर्ड क्वांटिटी। फिर इसको उस मयारी मिकदार के लिहाज से बयान किया जाता है। दिस स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट।
इस मयारी मिकदार को यूनिट कहते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जो यूनिट की तारीफ है वो आप लोगों ने इसको हाईलाइट कर लेना है, इसको आप लोगों ने लिख लेना है। इसके बाद आपसे जो सवाल शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो है आपके पास इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसकी डेफिनेशन यहाँ से उठाएं। The 11th General Conference on Weight and Measure held in Paris in 1960 adopted a worldwide system of measurement called International System of Unit. The International System of Unit is commonly referred as SI. ये इसकी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट या SI सिस्टम की डेफिनेशन तारीफ यहाँ से यहाँ तक लिखे। 11th कहते हैं 11वीं जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेयर। वेट और मैयर का एक ब्यूरो है, एक दफ्तर है, उसके अंदर एक 11वीं जनरल कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई पेरिस के मकाम पर 1960 के अंदर। इस बैनुल अक़वामी निज़ाम के अंदर पूरी पैमाइश का पूरी दुनिया के अंदर राइज होने वाला एक निज़ाम मुतारिफ करवाया गया और इस निज़ाम को इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहते थे। और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को हम आम तौर पर SI से ज़ाहिर करते हैं। आज जो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं इसको हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं। आज हम लोगों ने जो चीज़ पढ़ी है, जो चीज़ सीखी है वो ये है कि जी यूनिट क्या होता है। यूनिट अगर आपसे वो डेफिनेशन के अंदर पूछे, तारीफ़ के अंदर पूछे, तो यूनिट की तारीफ़ जो आप लोगों ने लिखनी है, यूनिट की तारीफ़ ये होगी, वंस अ स्टैंडर्ड इज सेट फॉर ए क्वांटिटी। जब किसी मिकदार के लिए एक मयार मुकर्रर कर लिया जाता है, देन इट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ दैट स्टैंडर्ड क्वांटिटी। फिर उसको हम उस मयारी मिकदार के लिहाज से बयान करते हैं। दिस स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। इस मयारी मिकदार को हम यूनिट का नाम देते हैं। SI सिस्टम क्या होता है? दूसरे नंबर पे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है, तो इसकी तारीफ आप लिखेंगे। 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेयर हेल्ड इन पेरिस इन 1960 adopted a worldwide system of measurement called International System of Unit। 1960 में पेरिस के नज़दीक एक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, 11वीं कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई और इसके अंदर पैमाइश का बैनुल-अक़वामी निज़ाम मुतारिफ करवाया गया और इस निज़ाम को आप इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का नाम देते हैं। अगर वो आपसे FPS के बारे में वो आपसे ये पूछे जी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल जो है SI सिस्टम और मेजरमेंट की क्या ज़रूरत पड़ी थी, नीड बताओ, क्यों लिखी है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपसे वो पूछे, क्या ज़रूरत थी कि सिस्टम ऑफ यूनिट SI सिस्टम और मेजरमेंट की पैमाइश की क्या ज़रूरत, तो आप बता सकते हो पहले ज़माने में FPS मेजरमेंट ऑफ सिस्टम और CGS मेजरमेंट ऑफ सिस्टम राइज था, जिसके वजह से ट्रेडिंग के अंदर, तिजारत के अंदर थोड़े मसाइल पैदा होते थे। तो इन कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए 1960 के अंदर एक ऐसा सिस्टम राइज करने की ज़रूरत पेश आई जिसके मुताबिक पूरी दुनिया के अंदर एक निज़ाम राइज किया गया और इस निज़ाम को आप SI सिस्टम का नाम देते हैं। अगर हम इसको देखें इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर इसका जो नाम है वो है MKS मेजरमेंट सिस्टम। SI को आप MKS मेजरमेंट सिस्टम का नाम भी दे सकते हैं। यहाँ से M जो है, M से मतलब है मीटर, K से मतलब है किलोग्राम और S से मतलब है सेकंड। लंबाई लेंथ की पैमाइश करने के लिए इस निज़ाम के अंदर मीटर का यूनिट इस्तेमाल किया गया, मास की पैमाइश करने के लिए किलोग्राम का यूनिट इस्तेमाल किया गया और टाइम के लिए सेकंड का इस्तेमाल किया गया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज का जो लेक्चर होगा वो समझ आ गया होगा। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।